Hello everyone, welcome back to Excel Learning. This is your digital learning platform and today we are going to look into a poem Throwing a Tree written by Thomas Hardy. I have taken up this poem from class 7 English literature book. Okay, so right now without wasting any more time, let's get into the chapter because in this particular video we will discuss the poem line by line, word by word and along with all the poetic devices that are used in this poem. Okay. वर्ड मीनिंग जो है वो भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है. उसके बाद थीम्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे और पोएटिक डिवाइस जो यूज़ किया है इस पोएम में सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए अभी वक्त ज़ाया ना करके शुरू किया जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्रोइंग अ ट्री, द वर्ड थ्रोइंग, this particular word is not appropriate. Why? Because we cannot throw a tree. Then also the poet has used the word throwing. Now the question is why? ओके, ये हम लोग एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एंटायर पोएम. ओके, टोटल 4 स्टैंजास आर देयर इन द पोएम एंड द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी ए बी ए बी. ये रहा पोएम का राइमिंग स्कीम. ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा देखिए. Two executioners stalk along over the knoll, bearing 2 axes with heavy head, shining and white, and a long-limbed 2-handled saw tooth for cutting great boughs, and so they approach the proud tree that bears the death mark on its side. So the very first stanza gives us a lot of information. First of all, how many executioners are there? 2 executioners are there. That means 2 people are there, those who are going to cut a particular tree, and they are stalking. Stalking means they are coming very slowly. Where? Over the knolls. Knoll matlab mound. Knoll matlab mound. Okay, so 2 executioners are there, those who are coming very slowly over the knoll. And what are they carrying? They are carrying 2 axes. So 2 people are carrying 2 axes with heavy heads. The heads of the axes are very heavy. They are very shining and they are very white. Shining conveys a sense of sharpness. Okay, that means the axes are very sharp so that it would be very easy for them to cut down the tree. और वो बहुत white भी है, shining भी है और heavy भी है. Okay, एंड लॉन्ग लिम्प 2-handled saw, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो. टूथ फॉर कटिंग ग्रेट बोल्स. बोल्स मतलब पेड़ का जो हिस्सा एकदम जमीन के ऊपर रहता है. मान लो कि ये एक ट्री है, ये एक ट्री है. ओके, देखिए ये एक ट्री है और ये आपका आ गया जमीन. तो ये वाला जो हिस्सा है इसे बोल कहा जाता है. ओके, सो एंड टू लॉन्ग लिम्ब 2-handled saw tooth for cutting the great boughs, and so they approach the proud tree. Why the tree is very proud? Because the tree is around 200 years old. इस पोएम में दिया हुआ जो कि हम लोग बाद में देखेंगे. That bears the death mark on its side. That means the tree is already bearing death mark. यानी कि इससे पहले भी कोशिश किया गया है इस पेड़ को काट के उखाड़ के फेंक दिया जाए. ठीक है, सो what is the second stanza telling us? The second stanza telling us 2 executioners, that means 2 people, those who are coming very slowly to cut the tree where over the knolls, and both of them are bearing 2 axes, and the heads of the axes are very heavy, shining and white, and they are also carrying a long leaf 2-handled, जो जिस सॉ का दोनों तरफ हैंडल है. ठीक है, क्यों? फॉर कटिंग द बोल्स, एंड दिस इज हाउ सो दे अप्रोच द प्राउड ट्री. इसी तरह वो दोनों एग्जीक्यूशनर क्या किया, उस प्राउड ट्री की तरफ वो लोग बढ़ रहा है. दैट बियर्स द डेथ मार्क ऑन इट्स साइड, और वो वाला ट्री जिसमें ऑलरेडी डेथ मार्क है. सो आई होप द फर्स्ट आंसर इज क्लियर. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड वन. जैकेट्स डॉफ्ड दे swing axes and chop away just above the ground, and the chips fly about and lie white on the moss and fallen leaves, till a broad deep gash in the bark is hewn all the way round, and one of them tries to hook upward a rope, which at last he achieves. So see, in the second stanza, both the executioners are starting their work. At first they have taken up their
जैकेट्स। ओके, उन दोनों ने अपना जैकेट को खोल दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये लोग जो पेड़ को काटने आए हैं, दैट मीन्स कटिंग द ट्री इज गोइंग टू बी अ टायरसम जॉब। Okay, that's why they just took off their jackets and they started swinging the axes and chop away just above the ground। और फिर एक्सेस को स्विंग करके वो दोनों सिर्फ इस पार्ट से काटना शुरू कर दिया। ठीक है, और जब काट रहा था क्या हुआ? चिप्स फ्लाई अबाउट। चिप्स मतलब देखना कि जब वुड्स वगैरह काटा जाता है तो चिप्स, छोटा छोटा जो डस्ट होता है, डस्ट पार्टिकल, वो सब उड़ता रहता है। ओके, एंड द चिप्स फ्लाई अबाउट। और सारा जो चिप्स है वो उस पेड़ के काटने के दौरान जो चिप्स निकल रहा था वो सब इधर उधर गिर रहा था। वह किसके ऊपर गिर रहा था? मॉस के ऊपर और फॉलन लीव्स के ऊपर। ओके, और दोनों ने तब तक अपना चॉपिंग जारी रखा टिल अ ब्रॉड डीप गैश इन द बार्क इज ह्यून ऑल द वे अराउंड। कि जब तक ना उस पेड़ के ऊपर एक, मतलब पेड़ का जो बार्क है, उस बार्क के ऊपर एक डीप इंजरी आ गया। कंटिन्यू वो लोग हीट किए जा रहे थे उस पेड़ को। एंड वन ऑफ देम, तो जब उसमें एक ऑलरेडी एक इंजरी आ गया उस पेड़ के बार्क के ऊपर, पेड़ के स्टेम के ऊपर, क्या किया उन दोनों ने? एक हुक अपवर्ड अ रोक। वो दोनों क्या किया? एक रस्सी को पेड़ के ऊपर का जो ब्रांचेस है, मान लो कि यहाँ से वो लोग काटा, ठीक है, और फिर यहाँ से मान लो कि कुछ ब्रांचेस निकाला हुआ है, तो यहाँ पे वो दोनों खड़ा है, तो यहाँ से एक रस्सी फेंका ताकि वो रस्सी इधर से जाए, इधर से गया, इधर से रस्सी आ गया, फिर रस्सी खींचेगा तो ये पार्ट एकदम यहाँ से पूरा नीचे आ जाएगा। ओके, इसीलिए क्या किया? एंड वन ऑफ देम ट्राइज टू हुक अपवर्ड अ रोप। और उन दोनों में से एक ने क्या किया? एक रस्सी को ऊपर उछाला, हुक करने का कोशिश किया, विच एट लास्ट ही अचीव्स। दैट मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुल नहीं रहा, 3-4 बार 5 बार किया, उसके बाद जाके उनको अचीवमेंट मिला। ओके, सो आई होप द सेकेंड स्टैंजा इज ऑल्सो क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन। द सॉ देन बिगिन्स। अब फिर किसका काम शुरू हुआ? सॉ का काम शुरू हुआ। तो पहले उन लोगों ने किससे पेड़ को काटा? पहले पेड़ को काटा एक्सेस से। ओके, और फिर थर्ड स्टैंजा में जाके हम लोग ये देख रहे हैं कि थर्ड स्टैंजा में सॉ का काम शुरू हुआ। टिल द टॉप ऑफ द टॉल जायंट शिवर्स। टॉल जायंट यहाँ पे कौन है? ट्री। ओके, और उस सॉ से तब तक काटता रहा जब तक पेड़ का एकदम टॉप मोस्ट जो ब्रांच है उसमें ना शिवर आ गया। द शिवर आर सीन टू ग्रो ग्रेटर ईच कट देन बिफोर। और हर एक बार जब वो लोग वो सॉ पेड़ के ऊपर चला रहा है, तब तक पेड़ और ज़्यादा शिवर कर रहा है, पहले से और ज़्यादा शिवर कर रहा है। ओके, शिवर करना मतलब कांप रहा है। दे एज्ड आउट द सॉ टग द रोप बट द ट्री ओनली क्विवर्स। यानी कि मान लो कि ये रहा ट्री, ओके, और ऐसे एकदम काटते काटते सॉ यहाँ तक ला दिया। ओके, सॉ यहाँ तक ला दिया। देखो, दे एज्ड आउट द सॉ, यानी कि काटते काटते पूरा यहाँ तक सॉ को ला दिया। टग द रोप, फिर वो जो रस्सी जो झुलाया था उसे खींचा नीचे की तरफ। बट द ट्री ओनली क्विवर्स, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे नहीं आया, वो ट्री बस क्विवर किया। एंड नीलिंग एंड सॉइंग अगेन दे स्टेप बैक टू ट्राई पुलिंग वंस मोर। तो पहला बार जब उन लोगों ने उस रस्सी को नीचे खींचा तो ट्री का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन नीचे नहीं आया। फिर इन दोनों ने क्या किया? थोड़ा पीछे गया और जोर लगाया, तब जाके ये वाला पोर्शन नीचे आ गया। ओके, देन लास्टली द लिविंग मास्ट स्वेयर। लिविंग मास्ट मतलब स्टेम का बात यहाँ पे बोल रहा है पोएट। सो देन लास्टली द लिविंग मास्ट स्वेज फर्दर स्वेज विथ अ शाउट जॉब एंड आइक। ये दोनों एग्जीक्यूशनर्स का नाम है, रश असाइड। तो फाइनली ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन नीचे आ गया और यहाँ पे जॉब और आइक जो था वो लोग चिल्ला के उधर से हट गया ताकि उन दोनों के ऊपर पैर ना गिरे। रीच्ड the end of its long staying powers the tree crashes downward। और फाइनली वो ट्री का ऊपर का जो पोर्शन है वो पोर्शन एकदम क्रैश कर गया, पूरा नीचे गिर गया। इट शेक्स
ऑल इट्स नेबर्स थ्रू आउट, यहाँ पे नेबर्स मतलब कौन, अदर ट्रीज, ओके, अदर ट्रीज। और वो जब गिरा, इतना बड़ा पेड़, इतना पुराना एक पेड़, 200 साल का एक पेड़ जब गिर गया, उस पेड़ का जो नेबर्स था, यानी कि दूसरा जो वहाँ पे जितना पेड़ था, सारा पेड़ एकदम चौंक गया, सारा पेड़ एकदम डर गया, ओके। एंड 200 years स्टेडी ग्रोथ हैज़ बीन एंडेड इन लेस देन 2 hours। और इसी तरह एक पेड़ जो बढ़ने में, ओके, जो ग्रो होने में 200 साल लगा, 200 साल पुराना एक पेड़ उन दोनों ने 2 घंटे के अंदर काट दिया, काट के फेंक दिया। क्लियर एवरीवन? अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट इंपॉर्टेंट है। इट शेक्स ऑल इट्स नेबर्स थ्रू आउट, कि वो पेड़ जब नीचे गिरा तो अदर जो पेड़ है, जो ट्रीज वहाँ पे था, सब ट्रीज पर्सोनिफिकेशन हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो सारा ट्रीज यहाँ पे क्यों कांप गया? क्योंकि उन लोगों के मन में एक डर बैठ गया कि ये हमारे दादाजी है, ओके, 200 साल पुराना, तो अगर इस पेड़ को ये लोग काट सकता है तो हम लोग तो अभी बच्चे हैं, हम लोगों को ये तो कभी भी उठा के उखाड़ के फेंक सकता है। इसीलिए सारा जो नेबरहुड था वो लोग एकदम चौंक गया और कांप गया, ठीक है। और इसी तरह उसी पेड़ को, जो पेड़ 200 साल से बढ़ रहा है, 2 घंटा भी नहीं लगा, जॉब और आइक ने उसे काट दिया। क्लियर? सो अगर हम लोग एक रिवीजन कर ले तो फर्स्ट स्टैंजा है, द फर्स्ट स्टैंजा टेल्स अस अबाउट 2 choppers, those who are coming along the mound and they are bearing 2 axes with heavy heads, shining heads and white heads, okay, and they are also carrying 2-handled saw for cutting the tree, and this is how they are approaching the tree. Clear? First stanza. Second stanza, in the second stanza both of them have taken off their jackets and they started chopping the tree. Clear? And while they were chopping the tree, the chips were flying, and they were flying on the moss and fallen leaves, and they kept hitting the tree until and unless there was a deep injury on the bark of the tree, and finally one of them just hooked upward a rope and achieved. Clear? Now let's come to the third stanza. In the third stanza, both the executioners are using the saw, okay, for cutting the tree, and finally when they were applying the saw on the tree was just quivering, the tree was just shivering, okay, and finally they tugged the rope, but the tree did not come down. Clear? So once again they put more and more force and they tugged the rope, and finally the upper part of the tree came down, and lastly when the upper part of the tree came down, Job and Ike, both of them, to the executioners, they just rushed from the place, they just rushed aside, and finally they started cutting the other branches of the tree. But when the upper part of the tree just came down or crashed down, all the other neighborhoods and all other trees got afraid, okay. And this is how a tree which took almost 2 hours to grow is cut down by these 2 men, not less than 2 hours. Clear? So the entire poem एक्सप्लेनेशन आई होप क्लियर। अब आ जाते हैं हम लोग थीम पे, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री में हम फिर से एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ओके, ये बहुत कॉमन एक पॉइंट है। उसके बाद क्रुएल्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग, सी बोथ द पीपल, एक्चुअली हियर जॉब एंड आई, 2 characters were getting, but if you just get deep into the topic, you can realize, you can understand that these 2 choppers are actually representing the entire human being, okay. They are representing the entire human being, how cruel we are actually towards our nature, how cruel we are actually towards our trees and environment. Clear? Unkindness, the way Job and Ike are cutting the tree, hitting the tree, it conveys a sense of unkindness or ruthlessness, okay. And lastly, thoughtlessness, okay. See, we should think twice before cutting a tree, because we are living just because of oxygen which is provided by trees only, right? So हम लोग पेड़ को काट देंगे
और वहाँ पे हम लोग घर बना लेंगे, हम लोग वहाँ पे फ्लैट्स बना लेंगे, अपार्टमेंट बना लेंगे। लेकिन अगर पेड़ रहेगा नहीं, अगर हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे तो हम लोग ज़िंदा कैसे रहेंगे? और हम लोग अगर ज़िंदा नहीं रहेंगे तो घर, मकान, मैंशन, कैसल, अपार्टमेंट, फ्लैट, ये सब लेके हम लोग क्या करेंगे, राइट? सो इट कन्वेज द सेंस ऑफ थॉटलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, I hope clear. Now let's come to poetic device. The very first important point is alliteration, where same sound का repetition होता है। देखो, the two executioners talk along over the knoll. यहाँ पे s sound का repetition हो रहा है, तो ये आ गया आपका alliteration. Next, approach the proud tree. r sound का repetition हो रहा है, यहाँ पे आ गया alliteration. और एक यहाँ पे alliteration है, देखो मैं यहाँ से आप लोग को दिखा रहा हूँ। टॉल जाइंट, टॉल जाइंट में देखो टी साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये भी आपका आ गया एलिट्रेशन। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, सी द चिप्स फ्लाई अबाउट एंड लाइट, तो चिप्स यहाँ पे काम कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन। द सॉ देन बिगिंस, अब सॉ खुद काम कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन। द ट्री ओनली क्विवर्स, ट्री पर्सोनिफिकेशन। द लिविंग मास्ट स्वेज, लिविंग मस्ट पर्सोनिफिकेशन। और यहाँ पे देखो ये भी पर्सोनिफिकेशन होगा, इट शेक्स ऑल इट्स नेबर्स थ्रू आउट। सो सारा अदर जो पेड़ था वो भी यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है। ओके, और एक लास्ट पॉइंट है एंजैममेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंजैममेंट मतलब एक सेंटेंस जिस लाइन पे शुरू हो रहा है वहाँ पे वो ख़त्म नहीं हो रहा है, दूसरे लाइन या फिर तीसरी पे किसी भी लाइन पे जाके ख़त्म हो रहा है, लेकिन उसी लाइन पे ख़त्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो लाइन जंप करके किसी और लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, तब उसे हम लोग एंजैममेंट कहेंगे। देखो यहाँ पे लास्ट स्टैंजा आप लोग देखिए, देन लास्टली द लिविंग मास्ट स्वेज, फर्दर स्वेज विद ए शाउट जॉब एंड आई रन रश असाइड। तो ये यहाँ से शुरू हुआ है, खत्म हुआ है यहाँ पे। सेकेंड देखिए, रीच्ड द एंड ऑफ इट्स लॉन्ग स्टेइंग पावर्स द ट्री क्रैशेज डाउन, शुरू हुआ है यहाँ पे, खत्म हुआ है यहाँ पे। ये लाइन यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे आ गया, ये लाइन यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे आ गया। सो दिस इज कॉल्ड enjambment. Okay, so I hope the poem is completely clear, no issue. अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है कि हम लोग यहाँ पे, सॉरी, पोइट यहाँ पे थ्रोइंग क्यों यूज़ किया गया। देखो, पेड़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे नेचर का, राइट? वी कैन नॉट थ्रो अ ट्री, और सैपलिंग होगा फिर भी हम लोग चलो ये मान लेते कि सैपलिंग हम लोगों ने फेंक दी, लेकिन एक ट्री को कभी फेंका नहीं जा सकता। अ ट्री इज़ वेरी बिग इन साइज, अ ट्री इज़ वेरी हैवी, राइट? सो वी कैन नॉट थ्रो अ ट्री। लेकिन यहाँ पे दो एग्जीक्यूशनर्स जो है वो दोनों आए, दोनों ट्री को उन दोनों ने काट दिया, ठीक है, और फेंक भी दिया। इट कन्वेज अ सेंस ऑफ इन्फेरियरिटी, दैट मीन्स द ट्री is very inferior to them. The tree is very inferior to the entire human being. कोई बात नहीं है, चलो भाई, चलो जाते वहाँ पे वो जगह लगेगा, वो पेड़ काटो, काट के फेंक दो। बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग क्या फेंकते हैं? हम लोग कचरा फेंकते हैं, हम लोग कूड़ा फेंकते हैं, हम लोग वेस्टेज फेंकते हैं। लेकिन यहाँ पे उन दोनों ने पेड़ को ऐसे काटा और ऐसे एक 200 साल पुराना पेड़ को ख़त्म कर दिया एकदम जड़ से, कि मान लो कि वो एक कूड़ा है, वो एक वेस्टेज है। तो इसी सेंस से पोएट ने यहाँ पे यूज़ किया है थ्रोइंग अ ट्री। मानो कि ट्री का कोई वैल्यू ही नहीं है हम लोगों के जीवन में, ट्री का कोई वैल्यू नहीं है हमारे इंसानियत पे और हमारे एनवायरनमेंट पे, इसीलिए यहाँ पे थ्रोइंग अ ट्री यूज़ किया गया है। ओके, अच्छा, और एक बात मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि इसी टॉपिक के ऊपर और दो पोएम अपलोड किया हुआ है इस चैनल में। एक पोएम है व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, जो नया सिलेबस में है आईसीएससी का, और एक है ऑन किलिंग अ ट्री, जो कि पुराना सिलेबस में है, ठीक है। तो ये दोनों पोएम आप लोग देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया रखा है। ये दोनों पोएम अगर आप लोग देखोगे, यहाँ से लाइन कोट करोगे अगर आप लोग आंसर लिखने के लिए, तो आपका आंसर जो है वो बहुत अच्छा होगा। ओके, तो बस आज इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बट इफ़ यू हैव नॉट subscribe to this channel, then please do subscribe and press the bell icon so that you never miss a single update. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।